Hello everyone, once again most welcome in our channel Passion for Economics, Macroeconomics. We were learning about the money and banking chapter of class 12. So how are you all? I hope everyone is fine and enjoying the COVID-19 lockdown. So here we are with the important questions and explanation attached with the previous video about money and banking chapter. Here especially we will be talking about RBI and its functions. So if you're liking, please hit the button of like and subscribe. Please subscribe and hit the bell button. In this we will be going to learn about the RBI. So the content which we are just focusing over it is the RBI and its function of a RBI. In the last we have learned about commercial bank and its functions of a commercial bank. So we'll be learning here especially related to the Reserve Bank of India. As I have already told you that the video will be also consist of a important questions, most expected questions which is coming. So here you can see the what is central bank, means what is RBI and why it is called as a apex bank. This is all CBSE questions. The CBSE questions which is asked in the various 17, 18 and all other areas. And the main functions of the central bank, what is a function of a RBI, what is the difference between central bank and the commercial bank, what does it the difference comes between them, and what is the function again of the bankers to the government, especially all the function. These questions used to come in the 3 to 4 marks, you know, all the functions bankers के थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू, और जो आपका इशू ऑफ करेंसी है, जितने भी फंक्शंस है आरबीआई के, हर क्वेश्चन में से कोई ना कोई फंक्शन एक तो दे ही देता है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एटलीस्ट वो 3, 2 और 4 मार्क्स में आता है. एंड स्पेशली इट इज़ related to the open market operation which is affect the availability of the credit. So it is how it is important for us. So when we talk about this particular expected questions, it is very important for the general knowledge also regarding the Reserve Bank of India. So I put it some slides regarding the general knowledge also. So when we talk about our all monetary, like we have a judiciary system. In judiciary system we have a Supreme Court, High Court, and the district court. Similarly in the other part also we have a different type of the structure like legislative, executive, judiciary. Similarly we have a monetary policy, and in the monetary policy we have the Reserve Bank of India is the highest post. So Reserve Bank of India is leading in the monetary system. So as we have seen that Reserve Bank of India, RBI, is also known as the Central Bank of India. The second we can see that RBI was established in the 1st April 1935 and it was acted in a 1934. Act तो 1934 में हो गया था, बट established जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था. अब इसमें हम अगर और बात करें तो आरबीआई जो है वो स्टेटरी बॉडी है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स. स्पेशली द वर्क ऑफ ए आरबीआई इज टू प्रिंट द करेंसी and managing the supply of a money in the Indian economy. So this is also important that you can print the currency also in this, and you can manage the supply of a money in this Indian economy. So when we talk about this particular ownership of almost all the share capital was in the hand of non-government shareholder, and it was centralized and nationalized in January 1, 1949. So actually the fact we can see just now that RBI is also known as the Central Bank of India. RBI is a main part of the monetary system. ठीक है, it is denoted, it is was established in the 1st April 1935 and acted in 1934, and it was nationalized in 1st January 1949 itself. ठीक है, because RBI was just a government handover. It is a statutory body who used to manage the currency. ऐसे तो बोल सकते हो कि रुपए तो कोई भी छाप सकता है, बट RBI का मेन रोल होता है. RBI is a whole responsible authoritative for issuing a currency. So just a general knowledge for you as a RBI के बारे में. तो RBI headquarter is in Mumbai and Maharashtra. ठीक है, it was established, which I already told you, in 1st April 1935, acted in this one. And the present governor is Shashikant Das. Shashikant Das is the present governor, whereas the ex-governor Raghuram Rajan was there, and Ujit Patel. And the Central Bank of India, it is told, and the currency is actually a Indian rupee. Here it is followed as a Indian rupee, and the bank rate you can see now it is 4.40, and the interest on reserve is the 3.75%.
So this is the RBI introduction, which you need to have it for general knowledge for yourself, and also it can be asked in a 1 mark question, as you already know in the CBSE pattern and other pattern. Now MCQ questions are coming more. So in MCQ questions, this question can also come as a perspective. So when we talk about the functions of a RBI, there are the basically 4 functions of RBI. The first function, issue of currency. Here the issue of currency, bankers to the government, bankers to the bank, and controller of the credit. The RBI plays the role in towards these all areas. The first areas to करेंसी के पास, दूसरा गवर्नमेंट के थ्रू, तीसरा अपन बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास, और जो फोर्थ हम बात करते हैं यहाँ पर तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करते हैं इसको मैंने स्पेशली मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा अवेलेबल उस पर मैंने इसको बनाया गया है। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो इश्यू ऑफ करेंसी है, दूसरा जो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर्स। तो इस वीडियो में ये 3 ही मैंने समझाए हैं। जो फोर्थ है वो मैंने उसको सेपरेट एक वीडियो बनाया, आप उसमें देख सकते हो कि कैसे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कैसे हेल्प करता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज़ हिट कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इशू ऑफ नोट क्या होता है। इशू ऑफ नोट बैंक ऑफ इशू होता है। बैंक ऑफ इशू और इशू ऑफ नोट का मतलब होता है कि हमारे यहाँ करेंसी रुपए जो है वो कौन छापता है, हु यूज टू प्रिंट द करेंसी, किसके हाथ में अथॉराइजेशन होती है, किसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करेंसी को इशू करने की। तो हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसकी पूरी मोनोपॉली रखता है। मोनोपॉली मतलब आपको पता होगा, मोनो मतलब 1 एंड पॉली मतलब सेलर। सो 1 सेलर बस एक ही है जो कि करेंसी को प्रिंट कर सकता है, उसी के पास होल अथॉरिटी है, सिर्फ एक ही उसको राइट है कि वो क्या कर सकता है, करेंसी को इशू कर सकता है। यस, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन जो है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत बार क्वेश्चन सीबीएसई भी पूछती है कि 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन कौन इशू करता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। बाकी पूरी करेंसी की अथॉरिटी, लीगलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रिजर्व बैंक के पास है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हमने ये अथॉरिटी दी है, वो इसलिए क्योंकि जो बैंक के जो पैसे हैं, जो हमारे पास नोट्स हैं, जो करेंसी है हमारी, दैट शुड बी यूनिफॉर्म, दैट शुड बी इट शुड बी इक्वल इन ऑल एरियाज ऑफ एस्पेक्ट। ठीक है, हमारे इंडिया में पूरे जगह पे सेम करेंसी चलनी चाहिए। अलग अलग करेंसी चलेगी तो इट विल नॉट बी आइडेंटिफिकेबल। सो इट्स बेटर टू हैव द सेम यूनिफिकेशन। For universalization unification, we have done that whole sole responsibility we have given to the Reserve Bank of India. That is a power given to that monetary policy. इसको अडॉप्ट करने के लिए हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि आपको सिलेबस में इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको सिर्फ इसको इतना जानना है कि हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि जब अगर अपन इशू करते हैं करेंसी को, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमको हेल्प करता है कि जो हमारा मार्केट एक्सचेंज है, परचेजिंग एंड सेलिंग, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन दैट वे। अब प्रिंटिंग ऑफ नोट अगर हम देखते हैं तो आरबीआई यूजेस फॉर द 4 फैसिलिटीज़। उसके पास 4 फैसिलिटीज के थ्रू वो इजीली क्या कर सकती है, प्रिंट कर सकती है इशू। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये थोड़ा आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने रखा है। जो कंपनीज अवेलेबल है प्रिंटिंग प्रेस, वो नासिक में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। और ये भारतीय रिजर्व बैंक और नोट और मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भी है, जो कि आरबीआई ने ओन किया है। इसका प्रिंटिंग फैसिलिटी मैसूर में अवेलेबल है, कर्नाटका में अवेलेबल है, सालबोनी में है और वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पर जो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स हैं वो एक्चुअली मुंबई, नोएडा और कोलकाता और हैदराबाद में कॉइन प्रोडक्शन का काम होता है। तो इसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना वर्क करता है। तो अगर हम एक समरी में देखें तो इश्यू ऑफ नोट का होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड आरबीआई के फंक्शन के बारे में कि कैसे जो आरबीआई है वो किसको हेल्प करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है। हाउ इट इज रिलेटेड, आरबीआई एंड गवर्नमेंट इज हाउ रिलेटेड। नाउ यू कैन सी द बीजेपी पार्टी इज देयर ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हियर इट इज द पार्टी ऑफ ए गवर्नमेंट। सो हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। When we talk about it, the government play very important role as for the government.
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, जो आप देख सकते हो शशिकांत दास जी जो हैं, या कोई भी जो गवर्नर बनता है, जैसे रघुराम राजन भी है अपने लास्ट टाइम में, तो ये लोग एक एक्ट करते हैं, जैसे कि ये बैंकर्स के रूप में हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, एज अ एजेंट ये हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, एज अ एडवाइज़र रहते हैं, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की एडवाइस चाहिए, अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कैसे? तो निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो आरबीआई से जो है शशिकांत दास जो है, उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे काम करना है, क्या लीगैलिटी लाना है। जैसे अभी 20 करोड़ का एक पैकेज लाया उनने, या जिस तरीके की उन्हें जो योजनाएं लाई, वो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होती है। तो वो एडवाइस करती है। एडवाइस कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइस करती है। किसको एडवाइस करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बोलना चाहिए पैरेलल वर्कर हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एजेंट का भी काम करता है, कि जो भी वर्क होता है वो गवर्नमेंट का कौन हैंडल करता है? आरबीआई ही हैंडल करती है। आरबीआई जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के जितने भी यूज़फुल एडवाइस देने के काम होते हैं, पॉलिसीज़ के काम होते हैं, उनके जो डेप्ट मैनेज करने पड़ते हैं जितने भी, वो सब के सब किससे रिलेटेड होते हैं। इवन उनका अकाउंट हैंडल करने का काम, उनका डिपॉजिट लेना, उनका लोन बोरोइंग का देखना, हर एक चीज़ का काम बैंकर करता है। तो जो बैंकर टू गवर्नमेंट होता है, जो बैंकर जो गवर्नमेंट होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई ही मैनेज करता है। वैसे ही अगर हम स्टेट की बात करें तो ये तो स्टेट अथॉरिटी कंट्रोल करती है। तो इस कारण से आप बोल सकते हो कि जो बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, तो जो एक बैंकर है वो एक एडवाइजरी का रोल प्ले करता है, एक एजेंट का रोल प्ले करता है, एक सुपीरियर का रोल प्ले करता है, कि वो हर एक चीज़ को गवर्नमेंट को बताए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। दैट कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, दैट कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। So that is the most important work of a RBI towards the government. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट अपने सबऑर्डिनेट मतलब कमर्शियल बैंक पे कैसे रोल प्ले करती है। ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आपका कमर्शियल बैंक, तो उनका रोल कैसे प्ले होता है। एक बहुत छोटा सा चीज़ है अगर आप समझे तो, कि आपका प्रिंसिपल के अंडर कौन आता है? टीचर्स आते हैं, और टीचर्स के अंदर कौन आते हैं? स्टूडेंट्स आते हैं। तो जो रोल प्ले प्रिंसिपल करता है अपने टीचर्स के थ्रू और टीचर्स करता है अपने स्टूडेंट के थ्रू, वैसे ही यहाँ पर जो है आरबीआई किसके लिए करता है? आरबीआई रोल प्ले करता है टूवर्ड्स योर कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पर एक्चुअली सबऑर्डिनेट है, ठीक है, और जो आरबीआई है वो उसका सुपीरियर है, वो उसका हेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअली वर्क प्ले होता है वो एज अ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। आरबीआई जो होता है वो लीड करता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल लीड करते हैं टीचर्स को, वैसे ही यहाँ पर आरबीआई लीड करता है कमर्शियल बैंक को। तो आप इससे समझ सकते हो कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक जो है वो हैंड ओवर करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक के पास बिल्कुल भी अमाउंट नहीं बचता है एंड ही कैन नॉट बोरो फ्रॉम अदर बैंक ऑल्सो बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल फॉर इट और द मनी इज नॉट अवेलेबल, and in that case if the bank face any crisis, any financial crisis, RBI will act as a lender of a last resort. That time the last moment of borrowing will be taken by the आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी उनका एज अ रेपो रेट के थ्रू या एज ए डिपॉजिट एज अ रिजर्व वो रखता ही है, तो वो इजीली क्या करता है? रेट इंटरेस्ट पे लोन ले सकता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही। तो जो आरबीआई होता है वो एक लास्ट होप रहती है कमर्शियल बैंक की, कि भाई अगर तुमको कहीं से कहीं कोई भी बैंक को, अगर मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मनी की ज़रूरत है और मनी कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, देयर इज़ अ फाइनेंशियल क्राइसिस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ए मनी, so that time what will happen? That time the Reserve Bank of India will be going to be taking the advantage of it and
RBI will help to the commercial bank, any commercial bank RBI have to help, because जितने भी अकाउंट होते हैं कमर्शियल बैंक के, जो भी अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स जो हैं एक्चुअली वो किसके पास होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक बैंक का अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्टेड रहता है, तो उनका जो प्रोसेस है एक्सचेंज का, गिव एंड टेक का, वो होता रहता है और उसको क्लियर भी क्या करता है, इसलिए वो क्लियरिंग हाउस भी कहलाता है। तो कमर्शियल बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहलाता है, क्लियरेंस हाउस भी कहलाता है, बिकॉज उसका अकाउंट वहाँ पर रहता है और वो डेबिट क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्लियर होते रहते हैं वहाँ पर। बैंक आरबीआई को हर एक बैंक के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, हर एक बैंक के बारे में उनका क्रेडिट और डेबिट पता होता है, इसलिए वो उसको बेटरली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी वजह से वो क्लियरिंग हाउस के रूप में भी जाना जाता है। और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, आरबीआई जो है वो एज अ कस्टडी ऑफ फॉरेन रिजर्व होता है। जितने भी फॉरेन रिजर्व्स आते हैं वो आरबीआई अपने पास एज अ रिजर्व रखता है। वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इट कैन बी सप्लाइड टू द पब्लिक। तो आप देख सकते हो अभी भी जैसे कोविड-19 का जो भी सिचुएशन आ रहा हो रहा, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अकेले कर रहे होंगे? नहीं, यहाँ पर पूरी इकोनॉमिस्ट की पैनल्टी बैठी होगी, यहाँ पर पूरे पैनल बैठा होगा, यहाँ पर पूरा जो आपकी बात करते हैं, यहाँ पर बैंक की बात करते हैं अपन, वो बैंक पूरा काम कर रहा होगा, यहाँ पर शशिकांत दास की कमेटी काम कर रही होगी, निर्मला सीतारमन की कमेटी काम कर रही होगी, और वो पूरा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बैंकों को क्या किस तरीके के रूल्स फॉलो करने हैं, वो चाहे वो नोटिफिकेशन किसी भी फॉर्म में दें, पर वो कनेक्टेड रहेंगे। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रोल प्ले होता है वो जो है वो आरबीआई किसके थ्रू करती है, कमर्शियल बैंक के थ्रू करती है। ये आपको कंट्रोलर ऑफ कैश क्रेडिट में भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आरबीआई कैसे अपना जो कंट्रोल है, अपना जो पावर है, वो कमर्शियल बैंक के थ्रू दिखाती है। तो अगर आपको समझ में आया हो कि कैसे आरबीआई रोल प्ले करता है बैंक ऑफ इशू में, रोल प्ले करता है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, रोल प्ले करता है टूवर्ड्स ए कमर्शियल बैंक, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन of like and please subscribe.